Hello everyone. Today we will start with the first poem from Unit 3. The name of the poem is Why from your textbook My English Book 8. Okay. Now I will read the poem for you. Why? I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not, why by and by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes a cloud and why they cross the sky. Why sings the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know why wind should come from out the bellows nose. Why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flows. He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle's spout and rain falls from the sky. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. By nature, we human beings or animals, everybody is very curious about things and people around them. Okay, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं या कोई नई चीज़ होती है तो इंसान हो या जानवर हो हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि उसको जानने के लिए कि वो क्या है। ठीक है, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आप जानवरों को भी देखेंगे। अगर आपके घर में कोई पेट होगा और आपके घर में कोई नई चीज़ आप ले आते हो तो वो पहले उसके करीब जाएगा, उसको सूंघेगा, छुएगा और फील करके देखेगा कि वो क्या चीज़ है। बस हम में और जानवरों में ये फ़र्क होता है कि हम क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में। वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब चीज़ें पूछते हैं। जानवर सिर्फ देख कर, सूंघ कर, फील करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस पोएम में जो पोएट है वो हमको एक छोटे से बच्चे के ज़रिए समझाना चाहता है कि हाउ क्यूरियस आर वी, हम लोग कितने क्यूरियस होते हैं और इसीलिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। आई विल रीड द फर्स्ट स्टैंजा अगेन। I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. In this stanza, poet says that he knows a little boy who has a strong desire to know about everything, and for that he keeps on asking questions why. He keeps on asking why this, why that, why now and why not and so on. इस नज़्म में शायर ये बताना चाहते हैं कि इंसान जो है कोई भी चीज़ जानने के लिए कितना ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता है। ठीक है, उसमें इंसानों में और जानवरों में तजस्सुस होता है। यहाँ वो एक बच्चे के ज़रिए बता रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा अपने अतराफ़ की नई चीज़ों को देखता है जिसके बारे में उसको मालूमात नहीं होती है और वो लगातार सवालात पूछता है। क्या सवालात पूछता है वो? वाई, वाई यानी क्यों, वाई दिस, वाई दैट, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तमाम सवालात वो पूछता है ताकि उसको नॉलेज मिल सके। नाउ द सेकंड स्टैंजा, ही वांट्स टू नो व्हाई wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. In this stanza, the boy is asking some interesting questions like why wood should swim in the water whereas the lead and marble sink in it. Why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink,
It shows that the boy is very intelligent and he observes each and everything around him. इस स्टेंजा में बच्चा क्या सवाल पूछ रहा है कि अगर पानी है और उसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा डाला जाए तो वो डूबता नहीं है, लेकिन लीड शीशा जो होता है एक ठोस होता है चीज़, और उसके साथ मार्बल संगमरमर को भी बोलते हैं, या जो कंचे होते हैं जो लड़के खेलते हैं, कोटी बोलते हैं कंचे, वो ये दोनों चीज़ें इसमें डूब क्यों जाती है, जबकि लकड़ी का तख्ता है या लकड़ी है वो तैरती है। इसके अलावा वो जानना चाहता है कि सितारे चमकते क्यों हैं, ठीक है, और हवा जो है वो बहती क्यों है एक जगह से दूसरी जगह, और हम इंसानों को खाना और पीना क्यों पड़ता है, ठीक है। यानी ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आसपास की तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और उसका जो उसके पीछे जो रीज़न है वो जानना चाहता है, ठीक है। तो हवा क्यों बहती है, सितारे क्यों चमकते हैं, ये साइंस में हमने पढ़ा है। हवा कम दबाव ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है, सितारे चमकते क्यों हैं, ये हर चीज़ हम स्कूल जाते हैं या हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमको क्लियर होती चली जाती हैं। Now the next stanza, he wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sing the sun behind the hills, and why the flowers die. Further, the boy asks question about clouds. बादलों के बारे में वो सवाल कर रहा है, what are they made up of and why do they move in the sky. बादल कैसे बनते हैं, तो अगर आपने पानी का जो है आबी चक्कर आपने देखा होगा तो किस तरह से पानी जो है भाप बनकर उड़ता है और बादल बनते हैं, फिर दोबारा बारिश होती है, ठीक है। छोटे उस बच्चे को ये बात नहीं पता है तो वो ये सवाल पूछ रहा है कि बादल क्यों बनते हैं और क्या ज़रूरत है बादल को आसमान में रहने की, वो क्यों हमारी तरह ज़मीन पर नहीं चलता है। वाई द सन सेट्स और सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे क्यों डूब जाता है, जबकि हम ये बात जानते हैं कि सूरज पहाड़ के पीछे नहीं गुरूब होता है, बल्कि हमारी ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है, जिसकी वजह से वो हमको महसूस होता है कि वो गुरूब हो गया है। देन ही आस्क्स अबाउट द फ्लावर्स, वाई दे डाई सो सून। उसके बाद वो फूलों के बारे में पूछता है कि फूल सुबह खिलते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन शाम होते होते वो मुरझाने लगते हैं और मर जाते हैं। तो इस बात के लिए भी वो पूछ रहा है कि फूलों की ज़िंदगी इतनी शॉर्ट क्यों होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ही वॉन्ट्स टू नो वाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोस नोज, वाई पॉप गन्स शुड गो पॉप, एंड वाई the ocean ebbs and flows. In this stanza, the boy is asking about the bellows. Now, what is the meaning of bellows? Bellows means an apparatus for blowing air. ये एक किस्म का आला है जिसके ज़रिए जो है हवा फेंकी जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रुई साफ़ करने का आला है। इसके सिरे से हवा बाहर आती है जिससे रुई साफ़ की जाती है। इसी तरह पॉप गन, बच्चों का जो खिलौना होता है, उसको जो है उसमें बॉल्स भरे जाते हैं, तो वो पॉप गन को पॉप क्यों करना पड़ता है, ठीक है, ये उसके सवालात हैं। द ओशन एब्स एंड फ्लोज, और क्यों जो है वो समंदर में जो मद्दो जज़र आते हैं एब्स, वो जज़र के वक्त पानी ज़मीन से पीछे की तरफ फ्लो हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश हैव गिल्स and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle spout and rain falls from the sky. Now in this stanza he is asking about fishes. वो मछलियों के बारे में सवाल कर रहा है। He wants to know why fishes have gills. फिशेस को जो है गिल्स यानी गल फड़े क्यों होते हैं सांस लेने के लिए, अमल तनफुस के लिए। एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव नोज फॉर ब्रीदिंग, वाई डोंट द फिशेज ऑल्सो हैव द नोजेस। जिस तरह से इंसान और जानवरों में नाक होती है सांस लेने के लिए, उस तरह से मछलियों में नाक क्यों नहीं होती, उनको गिल्स क्यों होते हैं। ही वॉन्ट्स टू फ्लाई लाइक बर्ड्स बट एज वी नो वी कांट,
सो ही इज़ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर भी वो सवाल पूछ रहा है कि परिंदे क्यों उड़ सकते हैं और हम क्यों नहीं उड़ सकते। वो उड़ना चाहता है परिंदों की तरह। Then he asked about the steam coming out of the kettle spout and also how and why rains fall from the sky। अब वो आगे जानना चाहता है केटल बोलते हैं केतली। केतली का जो सिरा होता है वहाँ पर अगर हम गर्म चाय केतली में भरते हैं तो वहाँ से भाप स्टीम निकलती है। पूछ रहा है वहाँ से स्टीम क्यों आ रही है और साथ ही बारिश के बारे में पूछ रहा है कि आसमान से बारिश कैसे बरसती है। ठीक है, ये जितने भी सवालात वो करता है ये तमाम सवालात जैसे जैसे वो बड़ा होगा स्कूल में जाएगा तो उसको ये तमाम सवालात के जवाबात के बारिश कैसे होती है, भाप क्यों निकलती है, तमाम सवालात के जवाबात उसको क्लियर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ही वांट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर एंड मैरो इन द बोन। He is curious about the coal, why coal burns and why not a bit of stone। वो क्यूरियस है, उसको तजस्सुस है ये जानने के लिए कि कोल यानी कोयला जो है वो जलता क्यों है और एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा वो भी वैसे ही होता है देखने में, जब उसको जो है आग लगाई जाती है तो वो नहीं जलता है। ये एक उसका सवाल है। Then he is asking about the seeds। He wants to know who put the seed inside the apple and also marrow। marrow का मतलब होता है जो एक नरम सा सॉफ्ट सा गूदा होता है हमारे हड्डियों के बीच में। So marrow means a soft fatty substance in the cavities of bones। Here it is, okay, marrow। बच्चा ये जानना चाहता है कि फलों के अंदर बीज कौन रखता है, कहाँ से आते हैं, और हड्डियाँ जो हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं उसके अंदर मैरो कैसे आया। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो वाई आई शुड मेल्ट, वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, वाई बी शुड स्टिंग एंड वाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइज। यहाँ पर जो है बच्चा जानना चाहता है कि आइस बर्फ़ है वो पिघलती क्यों है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पाइडर मकड़ियाँ होती हैं वो फ्लाइज़ को, मक्खियों वगैरह को क्यों खा जाती हैं। वाई बी शुड स्टिंग मतलब डंक मारना, मधुमक्खी डंक क्यों मारती है। और यीस्ट बोलते हैं खमीर को। कोई भी चीज़ जब हम पकाते हैं और उसको बेक करना होता है, जैसे पाव है, केक है, ठीक है, पिज़्ज़ा ब्रेड है, इन चीज़ों को अगर बेक करना होता है तो डो का मतलब होता है आटा। तो आटे के अंदर यीस्ट मिलाई जाती है, खमीर मिलाया जाता है, जिससे वो राइज़ होता है, फूल जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि यीस्ट जो है वो डो यानी गूंदा हुआ आटा, उसको राइज़ करना, बढ़ा देना, बढ़ाता कैसे है। सो द boy wants to know why ice melt and spider eat flies, why bees sting people, and how come yeast make the dough rise। Okay, now I will read the last one. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why। In the last stanza, the poet says that all his questions are not so hard। पोएट कह रहा है कि उससे के जो बच्चे के जो सवालात हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं, दे आर क्वाइट ईजी। आई थिंक यू ऑल्सो नो आंसर्स टू सम ऑफ हिज क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आपको भी इसके बहुत सारे जो सवालात हैं उनमें से काफ़ी सवालों के जवाब आपको आते होंगे। But there are some such questions, the answers to which even we don't know. We have considered them to be fact and accepted them। लेकिन बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात आज भी हमारे पास नहीं हैं। हम उन सवालों के जवाब साइंस से या फ़िलॉसफी किसी भी तरीके से हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने फैक्ट मानकर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है,
So the boy in this poem talked about everything that comes into his mind. वो अपने दिमाग में आने वाले तमाम चीज़ों के बारे में सवाल कर रहा है. This reflects or shows that the boy is very intelligent. इससे क्या पता चलता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है. ठीक है. I hope all of you understand the poem. Thank you very much for watching the video.